Amen. Hallelujah. आप सब बैठ सकते हैं. You all can be seated. Amen. आप लोगों को याद है जो वर्ड मैंने 31 को दिया था? कितने लोगों को याद है जो 3 मेटाफर पौलुस ने बताए विश्वासियों के लिए? How many of you remember the metaphors that I gave, that Paul gave for the believers? The three A metaphors. soldier, एक सैनिक, an athlete, एक खिलाड़ी and a hard-working farmer. और एक परिश्रम करने वाला किसान. Amen. Amen. इस साल हमें कैजुअल नहीं होना है. We should not be casual this year. मैं होने नहीं दूंगा आपको. I will not let you be casual. Amen. Amen. हीट बढ़ने वाली है. The heat is about to increase. Amen. उसका वचन कहता है कि उसने स्वर्गदूतों को विंड यानी हवा His word says he's made his angels wind और अपने सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है. and his ministers a flame of fire. सेवक केवल पास्टर और प्रीचर नहीं, हम सब उसकी सेवा करने के लिए बुलाए गए हैं. और अगर आप परमेश्वर के सेवक हो तो आपका मार्ग होना चाहिए, धधकती हुई आग आपके द्वारा निकलनी चाहिए. Not only pastors are called to be ministers, but each one of us are called to be ministers of God. And if you are his minister, you shall be a flaming fire. Amen. ये 21 दिन की जो हम फास्टिंग कर रहे हैं, There's 21 days fast that we're it's doing. not just abstraining yourself from food. सिर्फ खाने से अपने आप को दूर रखना नहीं है. Spend time in prayer. प्रार्थना में समय बिताओ. Be fervent in prayer. पूरे दिल से प्रार्थना करो. Amen. जो लोग काम करते हैं, The people who are working, you know, अगर लंबा चलना है आपको, we can take one meal at night. if you want to fast for long, आप रात को एक बार खाना खा सकते हो. But पूरे दिन प्रार्थना में रहो. But the entire day stay in prayer. You can end your fast at 6, आप 6 बजे अपना फास्ट खत्म कर सकते हो. then pray. फिर प्रार्थना करो. ऑफिस से आओ, Come काम again. से आओ, Come back अपने from आप को work. ये 21 दिन अपने आप को सेपरेट करने का टाइम है. These 21 days are the days to separate yourself. हमने सीखा था कैसे कि जो एक सोल्जर होता है, आप जानते हैं जो ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं आर्मी के, वो सिविलियन पॉपुलेशन से अलग होते हैं. अलग किया जाता है उनको ट्रेनिंग के लिए. The training camps of an army are separate from the civilian camp. Because they are getting trained for battle. क्योंकि वो युद्ध के लिए तैयार किए जाते हैं. बाइबल हमें बताती है कि हमें भी विश्वास की एक अच्छी कुश्ती को लड़ना है. That we have to fight a good fight of faith. ये हमारी ट्रेनिंग के दिन है. These are the days of our training. 21 दिन 21 days, ट्रेनिंग के. training days. Amen. मैंने आपको बताया था एक जीवन है. I told you we have one life. आप डिसाइड करो कैसा जियोगे. You decide how you want to live. क्योंकि जैसा जियोगे Because howsoever you will live, अनंत में वो बदल नहीं सकता. you cannot change it in eternity. आपकी गवाही अनंत तक वही होगी. Your testimony will remain the same in eternity. अगर आपने एक सच्चा जीवन प्रभु के साथ बिताया, If you have lived an honest life with the Lord, अंत में जब आग आएगी परखने के लिए हमारे काम, in the end when the fire will come to test our works. क्योंकि बाइबल कहती है आग हर किसी के कामों को परखेगी अंत में. Because the Bible says the fire will test each one's works at the end. और अगर पवित्र उद्देश्य से सच्चे दिल से आपने परमेश्वर की सेवा करी, तो जो आपने किया वो सोने की तरह चमकने लग जाएगा. And if whatever you did for him, you did it with an honest heart, with a good desire, then whatever you have done will start to shine like gold. मगर अगर आपने गलत उद्देश्य से करा, But if you did it with wrong motives, तो बाइबल बताती है आग आकर उन सारे कामों को जला के नाश कर दे. then the Bible says the fire will come and destroy everything that was done. बाइबल कहती है तुम तो बच जाओगे, The Bible says you shall be spared, मगर दिखाने के लिए, प्रभु को देने के लिए कुछ नहीं होगा. but you will have nothing to offer to the Lord. हम सबको आज एक चीज समझनी बहुत जरूरी है All of us have to understand this one thing today. कि हम सब एक दिन उस मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होंगे. That all of us will stand before the throne of Christ one day. हमें अनंत को अपने आगे रखते हुए जीना है. We have to live keeping that eternity in front of us. Amen. Amen. पौलुस प्रेरित कहते हैं
कि अगर हमारी आशा है मैं कनाडा चले जाऊं, मैं अमेरिका चला जाऊं, केवल अगर मसीह के पीछे चलना मेरी ये चीज़ है, तो बाइबल कहती है हम सारे मनुष्यों में से सबसे अभागे लोग हैं। Paul the apostle says, if our hope is only for this life, that we want to get something from Jesus only for this life, then we are the most pitiable people among all. वो सब करता है हमारे लिए जब हम उसके पीछे चलते हैं। He does everything for us when we walk after him. मगर मैं चाहता हूं आज हम उस कमिटमेंट को दोबारा से परमेश्वर वो रिन्यू करें हम। But I want that we should renew that commitment towards him again. कई लोग आज कहते हैं मैं नहीं जा रहा कलीसिया, मैं प्रभु के पीछे नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? अजी प्रभु ने मेरी सुनी नहीं, मेरा वीज़ा नहीं लगा। Some people say, I don't want to follow after the Lord anymore. He didn't get me my visa. I'm not going to follow him anymore. वो 3 इब्रानी लड़के The 3 Hebrew boys जो राजा के सामने लाए गए, who were brought before the king. और राजा ने कहा मैं देखता हूं तुम्हारा खुदा तुम्हें आज कैसे छुड़ाता है मेरे हाथों से। The king said, I will see how your God will deliver you out of my hand today. उन्होंने कहा हे राजा सुन ले, They said, King, hear us. हमारा परमेश्वर हमारा खुदा इतना माइटी है कि तेरे हाथ से हमें छुड़ा सकता है। Our God is so mighty that he can deliver us out of your hand. मगर ये बात सुन, But hear this, अगर ना भी छुड़ाए even if he does तो भी not तेरी deliver us, मूर्ति के सामने झुकेंगे नहीं। even if he does not deliver us, even then we will not bow before your statue. क्या आज ऐसे विश्वासी हैं? Are there believers like that today? You know, इस साल कुछ दिन पहले आई थिंक लास्ट वीक जब मैं प्रार्थना कर रहा था, प्रभु का क्लियर इंस्ट्रक्शन मुझे आया कलीसिया को लेकर, और उसने कहा कलीसिया के हर एक व्यक्ति को कह दे कि हर एक व्यक्ति इस कलीसिया में एक सोल विनर बने। When I was praying last week, the Lord said, tell each person in this church that every member, every person in this church should be a soul winner. आप जानते हैं आपकी पहली बुलाहट, Your first calling, जो भी हम करते हैं परमेश्वर के लिए, No matter what we सबसे do, पहली बुलाहट हर किसी की क्या है? हमें एक गवाह होने के लिए बुलाया गया है। whatever we do for the Lord, above all of that, our first calling is to be a witness for the Lord. एक बार जब हम मोती नगर में थे One time when we were in Moti और Nagar, आराधना चल रही थी, worship was happening, और मैं बिल्कुल पीछे खड़ा होके मैं आराधना कर रहा था। and I was standing at the back and worshiping, मुझे प्रभु की आवाज आई, and I heard the Lord. and he said, उसने a कहा, church that does not win the lost is lost. वो कलीसिया जो खोए हुओं को नहीं बचाती, वो खोई हुई कलीसिया है। ये कोई एक क्लोज्ड ग्रुप क्लब नहीं है This is जहाँ not- पर हम आके मजा करके घर चले जाते हैं। This is not a closed group club where we come and enjoy and go home. मैंने आपको बताया था ये आर्मी है, I told you this is an army. इसका एक उद्देश्य है। This has a purpose. मैं चाहता हूँ आज के बाद आप अपने आप को एक योद्धा की तरह, एक सैनिक की तरह जो आर्मी में भर्ती हुआ है वैसा देखना शुरू करो। I want you to start seeing yourself as a soldier in an army, like you have joined the army of the Lord. आमेन। सिपाही की तरह ज्वाइन करो, विश्वास योग्य से बढ़ते जाओ, मेडल लगते जाएंगे। Start as a soldier, be faithful in the journey. He will keep on adding medals to you. उसका वचन कहता है जो थोड़े में विश्वास योग्य है उसको बहुत दिया जाएगा। His word says, he who is faithful in little shall be given much. आमेन। मैं बता रहा हूँ, आप अभी फास्टिंग का जब पहला रात था, प्रभु ने मुझे एक ड्रीम दिया, और मैंने ड्रीम में देखा कि एक काफ़ी चौड़ा गेट है अंदर आने के लिए, लोग आने की कोशिश करें, मगर भीड़ इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी भीड़ हो गई कि इतनी भयंकर धक्का मुक्की हो रही है अंदर आने के लिए। On the first night of fasting, I saw in a dream, the Lord showed me that there's a huge gate for entrance, but there is such a huge crowd that there is almost stampede to enter the hall. आमेन। बहुत बड़ी कटनी करनी है दिल्ली में। There is a huge harvest we have to do in Delhi. आमेन। बाइबल बताती है he who wins the souls is wise बाइबल कहती है जो प्राणों को जीतता है वो बुद्धिमान है, and will shine like a star in the kingdom of his father। और उसके पिता के राज्य में वो सितारों की तरह चमकेगा। हाँ, आज की दुनिया में बॉलीवुड के, हॉलीवुड के बहुत सारे स्टार हैं, मगर उनकी जो महिमा है, उनकी जो ग्लोरी है वो फेडिंग है। जहाँ शक्ल में झुर्रियाँ आती हैं, ग्लोरी भी फेड कर जाती है। There are many stars in Bollywood and Hollywood, but as they start to wrinkle, their glory goes down. हाँ, 5-10 साल
5-10 years. इंजेक्शंस और बोटॉक्स काम कर लेता है, Injections and Botox help them. मगर उसके बाद After जब that- मूवी आना उनकी बंद हो जाती है When their movies stop coming, तो वो महिमा भी फेड हो जाती है। their glory also fades away. मगर जो आत्माएं बचाता है, But he who saves souls, बाइबल कहती है वो अपने पिता के राज्य में तारों की तरह चमकेगा, जिसकी महिमा का कोई अंत नहीं। आप योर ग्लोरी विल नेवर फेड इन जीसस नेम। Bible says he will shine like stars in the kingdom of the Father. आपकी महिमा कभी कम नहीं होगी। आमीन। और मैं आपको बता रहा हूं, बीच छिड़कते जाओ, आपको पता भी नहीं चलेगा। मैं ये मैसेज तो मैं बना के नहीं आया था, मगर आत्मा आज भी कलीसिया से कहता है। Amen. I'm telling you, keep on going and distributing the seed everywhere you go. सुमित का है, सुमित अपने ऑफिस में किसी और को प्रचार कर रहा था, Sumit was in his office preaching the gospel to यीशु someone के else, बारे में बता रहा था। telling them about Jesus. वहां पे कोई और सुनने लगा Somebody else started to hear the जिसको वो नहीं conversation, बोल रहा था, to whom he was not speaking. और वो पूरा परिवार आज कलीसिया में आता And है। that whole family is in the church today. मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, Many people are कौन waiting. आएगा, Who will come? कौन हमें छुड़ाएगा, Who will deliver us? कौन हमारी परिस्थिति से हमें निकाल Who सकता will है। take us out of our situation? हालेलुया, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। Y'all can be seated. आज टेंशन नहीं है, There's no tension today. आज फास्टिंग है, सो लंच नहीं है। We have fasting, so there's no lunch आज हम outside. जा सकते हैं 6 बजे तक। We can go till 6 p.m. today. आमीन, हालेलुया। बाहर जो जाएगा कुछ नहीं मिलेगा उसको, खाली लॉन है। Yeah, the lawn is empty today. घास There's no खानी है food. तो चले जाना बाहर। तो घास खाने से अच्छा है कि उसका वचन खाओ जो जीवन देने वाला है। It's better to eat His word which gives life than grass. Amen. Bible says be vigilant. बाइबल कहती है सचेत रहो। मैं ये भी आपको कह दूं, Let me also say this to you. और ये मैं जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था, मुझे महसूस हुआ, मैं फीलिंग्स में नहीं, I perceived it in my spirit. When I was praying, मैंने अपनी आत्मा में ये इस बात को जान लिया। The warfare is going to intensify. जो लड़ाई है वो और ज्यादा गंभीर होने वाली है। मगर युद्ध हमारा नहीं, But the युद्ध यहोवा का है। battle doesn't belong to us. The battle belongs to the Lord. Amen. Amen. कितने बड़े लोग बड़ी गवाहियां चाहते हैं इस साल, How many people want big testimonies in their तो life? बड़ी गवाहियों के लिए the bigger the test, the bigger the testimony. तो जितनी बड़ी परीक्षा है उतनी बड़ी उसमें से गवाही होगी। कितने लोग बड़ी जीत देखना चाहते हैं। How many people want to see a big victory in their life? Amen. सो तैयार करो अपने आप को, So prepare yourself. तैयार करो। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे जैसे समयों में हम जी रहे हैं, अब कैजुअल क्रिश्चियन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा। The times we are living in, it will be very difficult for casual Christians. बहुत सारे आप देखोगे जो केवल आते हैं वीजा लगाने के लिए, मेरा वीजा लग जाए, वो सब चले जाएंगे वापस। Many you see who come for a visa, they will go back. मगर जो ये सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह तू मेरा सच्चा धन है। But it's most important to first know, Jesus, you are my first, foremost, superior treasure. अगर मुझे जब यीशु मिल गया तो मुझे सब कुछ मिल गया। When I have found Jesus, I found everything. Amen. सो हमें तैयारी करनी है। So we have to बार बार prepare. प्रभु का आत्मा मुझे यही कहता, इट्स लाइक द बाइबल सेज ही ट्रेन्स आवर फिंगर्स फॉर बैटल। परमेश्वर मुझसे बार बार ये कहता है, वो हमारी उंगलियों को युद्ध लड़ना सिखाता है। क्योंकि याद रखो, बाइबल कहती है कि सतर्क रहो, क्योंकि तुम्हारा जो दुश्मन है शैतान, वो मौके तलाश रहा है कि कैसे तुम्हें फाड़ खाए। Because the Bible says, be sober, be vigilant, because your enemy, the devil, is looking for an opportunity to devour you. Resist him steadfast in faith. विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो।
एक ही तरीके से आप उसका सामना कर सकते हो There's only- जब आप विश्वास में दृढ़ हो। There's only one way to steadfastly resist him when you are steadfast मैंने in आपको faith. बताया था हमारा जो एडवर्सरी है, हमारा जो दुश्मन है, उसके अंदर कोई दया नहीं है। I told you our adversary knows no mercy. He will not spare your family, he will not spare your kids. वो आपके परिवार को नहीं छोड़ेगा, आपके बच्चों को नहीं छोड़ेगा। But Jesus has given us authority over him. लेकिन यीशु ने हमें उसके ऊपर अधिकार दे दिया है। Amen. अगर अपने आप ही परमेश्वर डील कर लेता शैतान से, तो फिर कलीसिया को कभी ये अधिकार नहीं देता और ये नहीं कहता कि तुम उसका विरोध करो। विरोध हमें करना है, रेजिस्ट हमें करना है शैतान को। If God was going to on his own take care of the devil, he would not have given us the authority nor asked us to resist him. Amen. So एक सोल्जर की तरह जीना ऑप्शन नहीं है, हम सब उस लड़ाई में बुलाए गए हैं। So it's not an option to live like a soldier. We are all called in this battle. पौलुस को तिमोथी कहता है विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़। Paul tells Timothy, fight a good fight of आप faith. जानते हैं कुश्ती क्यों का है? वॉर खत्म हो चुका है। You know why समझो इस बात को। why it's called a यीशु wrestling? मसीह ने वॉर जीत लिया है। Why is it called a wrestling? Because the war is over. Jesus has already won the war. The war is over. The wrestling is still going on. But the rest Because the wrestling is personal. मल युद्ध अभी भी चल रहा है क्योंकि मल युद्ध जैसे दो शैतान लोगों के बीच होता आपके है। विरोध में आता है, आपके पड़ोसी के विरोध में वैसे नहीं आता। The way the devil comes against you personally, he does not come against your neighbor the same way. उसको पता है किसको क्या देना है। He exactly knows what to tempt one person with. Amen. इसीलिए हमें तैयारी करनी जरूरी है। This is why we have to prepare. Amen. So जैसे मैंने कहा था, the heat will increase. आग जो है वो बढ़ने वाली है, गर्मी बढ़ने वाली है। Amen.